Hi everyone, welcome to Law Prep tutorial. I'm your mentor Harshvardhan Tripathi and I am back in this session with a very precise topic, how to make notes out of current affairs. Students, those who are going to face CLAT in some months, students those who are preparing for next year's CLAT, students those who are in foundation batches and they are preparing and they are thinking that in the next 2 years they need to crack CLAT, and students those who are in class 12th or class, you see they are still thinking that after class 12th I should go for CLAT. I would rather say that current affairs is one section where you should start your preparation from. You can start it by your own self, you can start it by joining an institution, you can start it by reading newspapers. Apparently what I have seen as a matter of routine in past 6 years is that whenever examination is just around the corner, 30 days, 45 days, 60 days are left for the examination, current affairs is one section that gives a lot of anxiety to students because there is so much to do. Every day there are new developments. Every day there are new facts coming up. You haven't prepared your previous month's GK, and now you don't know from where you need to start. Secondly, you have read, when you see questions, you feel that you know these topics, but then you are not able to mark, or you usually mark incorrect options because there is no revision. And there is no revision because there is a dearth, there is a lack of study material. No, there is absence of revision, there is no motivation to revise because there are no apparently notes available. And when you think about making your own notes, they are so bulky, they are so voluminous that you tend to recreate or rewrite the entire article in 1,000 words, and then you don't know how you will go through your own copy because it's that bulky. All of these problems I am seeing since lot many years, and it's very usual for me to figure that out कि एग्जाम के 15 दिन पहले क्या साइकोलॉजी होगी किसी स्टूडेंट की। तो मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं ये ध्यान में रखते हुए नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्लैट अभी देना है, 1 महीने बाद देना है, 6 महीने बाद देना है, 1 साल बाद देना है। जीके को हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट के लिए, एलेट के लिए, लॉ के लिए, तो हमें जीके को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसी चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए, कैसी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में आर्टिकल्स के थ्रू करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो बिना फर्दर टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को। राइट, मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी है और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस तरह की कॉपी हमें चूज करनी रहती है। एक प्लेन A4 वाली जो कॉपीज आती हैं, 300 पन्ने की रहती है, ब्लैंक पेजेस होते हैं, वो कॉपी स्पाइरल बाइंडिंग वाली खरीदिए। वरना एक सस्ता टिकाऊ काम जो मैं हमेशा करता हूँ, मुझे बड़ा बढ़िया लगता है, 500 पन्ने का वो फोटोकॉपी वाला अच्छे GSM का, 22-23 GSM का 180 रुपये का बंडल आ जाता है। 180 रुपये के बंडल में 250-250 पन्ने अलग करिए और 30-30 रुपये देके उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा लीजिए। तो एक तरीके से आप अगर कॉपी खरीदेंगे 300 पन्ने की तो वो आपको 150-200 रुपये की मिलेगी, और यहाँ पे बहुत प्यार से 220 रुपये, 230 रुपये में मुझे 2 कॉपियाँ मिल जाती हैं। बात वही है, पन्ना A4 साइज़ का ही है। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को जो भी इंदौर में मुझसे पढ़ रहे हैं उन सबको मैंने मैंडेटरीली ऐसी कॉपियाँ बनाई हैं, कुछ हद तक उनकी कंप्लीट भी हुई हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप A4 साइज़ की इस कॉपी को खरीदिए या A4 प्लेन पेजेस को यूज़ करिए। इससे फ़ायदा बहुत होता है। इसमें आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, इसमें आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, इसमें कोई फ़ोटो न्यूज़पेपर की आई आपको काट के अपने नोट्स में चिपकानी है, आप वो भी कर सकते हैं। इसमें आप डायग्राम्स बना सकते हैं और बड़ी सुंदर लगती है ये कॉपी। इसमें आप इसको लैंडस्केप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट्रेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इट अपेरेंटली विल फील very very you can say interesting to you when this copy will be completed. Okay, so plain A4 की कॉपी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्टिंग के 5 से 6 पन्ने जो हैं अपनी कॉपी के उसको खाली छोड़ें। क्यों? क्योंकि हर किताब में जब आप देखते हैं कि किताब के अंदर क्या है तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं। तो आपने करंट अफेयर्स की कॉपी में कौन सा टॉपिक कहाँ लिख रखा है, इसके लिए आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट खुद का होना ज़रूरी है। ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के कुछ फ़ायदे हैं। पहला कि ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है, आप हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको दिखाई दिया कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, तो आपने लिख दिया इस इंडेक्स में SCO मीटिंग। फिर आपने और पेज पलटा तो आपको दिखाई दिया कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई हुई है।
फिर आपने और पेज पलटा तो आपको दिखाई दिया प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना याद करके कुछ आया हुआ है। तो आपने अपने करंट अफेयर्स की कॉपी में ये 3 टॉपिक हेडिंग की तरह लिख दिए। अब आपके पास टास्क आ गया है, ये 3 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, राइट। इनको प्रिपेयर कर लिया, इंडेक्स के आगे टिक कर दिया और पेज नंबर डाल दिया। फिर सेकंड टॉपिक पे गए, उसको प्रिपेयर कर लिया, टिक कर दिया, उसके नोट्स बना दिए और पेज नंबर डाल दिया। इसी तरीके से आप वो इंडेक्स को एवरीडे बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के क्या सोर्सेज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस इंडेक्स से आप रिवीजन को भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर करा, वो टॉपिक आगे टिक लगाया, पेज नंबर डाला। अब आपने फिक्स कर रखा है कि यार मैं हर 15 दिन में इस कॉपी को रिवाइज करता हूँ। तो मान लो आपने 15वें दिन पे जब टॉपिक खोला तो ऑलमोस्ट आपने 40 टॉपिक लिख रखे हैं। आपने एक हाइलाइटर उठाया, रिवीजन करना स्टार्ट किया। अगर आपने रिवीजन कर लिया है उसका एक बार, तो आपने उसको ग्रीन कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद अब आप सेकंड रिवीजन पे आ रहे हो, तो जहां पे आपने इंडेक्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग दी है, वहां पे आपने टिक मारना स्टार्ट किया। तो हाइलाइटर का मतलब यह है कि एक बार रिवीजन हो चुका है, टिक का मतलब यह है कि 2 बार रिवीजन हो चुका है। इस तरीके से आप इस अपनी कॉपी को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। मैं वही चीज़ें एडवाइस करता हूं जो मैं खुद पुट टू प्रैक्टिस करता हूं, जो मुझे खुद बड़ी अच्छी लगती है, जो मेरे काम को बहुत आसान करती है। Trust me, I'm a faculty of current affairs, but I still make my own notes. And I still make my own notes. I make PPTs, I make presentations, I make Word files, I make PDFs, I do that a lot. But then too, I need to have my own notes. Why? Because when I write things, I process that particular information in my own head. There is a pattern or there is a scheme of things related to that particular topic that gets very, very clear in my own head. And until and unless I understand that topic, I will not be able to explain it to others. That's the simple psychology behind it. And eventually it pays off by simple, there is a simple sign that I get that मैंने जब टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे उसके सारे फैक्ट्स याद आ रहे हैं। और मैं आंख बंद करके सोचता हूँ कि कैसे याद आ रहे हैं, तो मुझे मेरी कॉपी में मैंने क्या लिखा था उसकी एक हल्की सी धूमिल सी इमेज बनना स्टार्ट होती है। And that is why I say that note making is very very important. Do not avoid it. हाँ, नोट मेकिंग में कुछ चीजें हैं जो हमें लिमिट करनी रहती हैं, राइट। उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, हैविंग टोल्ड यू कि आपको 5 से 6 पन्ने इंडेक्स के लिए करने हैं। सबसे पहले यह है कि ये इंडेक्स किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। हाँ, इस इंडेक्स को अपडेट कैसे करना है, यानी कि इसमें जो टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा वो कहाँ से आएगा। तो येस, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, राइट। तो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं या न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक आता है, यू वांट टू डाइव इनटू दैट मोर, और मे बी यू अंडरस्टूड दैट टॉपिक इन द न्यूज़पेपर मोर, यू वांट टू मेक नोट्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। एंड ये यूजुअली कहाँ पे होता है, अगर आप द हिंदू के रीडर हैं तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट और FAQ सेगमेंट आता है, वहाँ पे आपको नोट्स बनाने रहते हैं। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस जैसा न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लेन्ड आता है, जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पर्टिनेंट होता है, तो आपको उसकी इंडेक्स सिंक करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा, आपके मॉक्स एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। यू अपीयर्ड इन मॉक, देयर वर 6 पैसेजेस, यू न्यू 2, you didn't know 4. There are highly likelihood possibility that these topics will appear in CLAT and will appear in successive mocks also. So you write those topics or passages as a list and then you prepare them, you make notes out of it. Mock भी prepare हो गया, अपनी गलतियां भी figure out हो गई और आगे के लिए हम तैयार भी हो गए। After that, it can be any random website जो कि आप come across किए, suddenly you are starting to read about let us say a non-aligned movement, and then you figure it out कि okay, disintegration of Yugoslavia is an important episode in modern history. Now you prepared everything about non-aligned movement, but then disintegration of Yugoslavia is a separate topic that is coming out from the article where you have read about non-aligned movement. So any random websites will give you topics, and yes, you can put that down in your index. Also please understand, index are like broader topics. अब मान लो अगर इंडिया ने कोई पहला या इंडिया ने कोई नया सुपर कंप्यूटर अनाउंस किया, ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया ने पहला सुपर कंप्यूटर अनाउंस किया या नया सुपर कंप्यूटर अनाउंस किया, ये टॉपिक नहीं है। सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया, ये एक टॉपिक आपके इंडेक्स में आएगा, या AI इन सुपर कंप्यूटर्स, एनीथिंग लाइक दैट।
तो अगर मान लीजिए नेशनल क्रिटिकल एनर्जी मिशन आप पढ़ रहे हैं, राइट, एंड यू वांट टू स्टडी अबाउट क्रिटिकल एनर्जी मिशन, तो क्रिटिकल एनर्जी एंड इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन विल बी देयर इन द इंडेक्स। सेकेंडली, इंडेक्सिंग परफेक्ट नहीं होगी, इंडेक्सिंग आपके हिसाब से होगी, राइट। तो मैं परफेक्ट इंडेक्स के एग्जांपल बता रहा हूँ कि इंडेक्सिंग अच्छी करनी है तो कैसे करना है, लेकिन हमें नोट बनाने का एक्सपर्ट नहीं बनना है। एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस ये है कि हमारे टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए। तो लास्ट पार्ट बढ़ता है क्लास कंटेंट में। कभी मेरी जैसे जीके की क्लासेस में मैं बच्चों को टॉपिक्स हर क्लास के बाद देता हूँ कि पढ़ के आइए, और फाउंडेशन के बच्चे को तो मैंडेटरीली है कि 2-3 टॉपिक मैं दूंगा ही दूंगा कि पढ़ के आना, और वो उसी चीज़ से रिलेटेड होगा जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को पढ़ाया है तो मैं बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हिस्ट्री ऑफ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, एंड 1971 का वॉर इंडिया और ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में पढ़ने को बच्चों को बोलता हूँ। तो इससे वो क्लास में जो टॉपिक पढ़ता है उससे अलाइड इंफॉर्मेशन वो रिसर्च करके नोट डाउन करके समझ के आगे बढ़ता है, और उसके मार्क्स फिर ऐसे टॉपिक्स में मिलते हैं। जैसे इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट, जैसे इफ आई टोल्ड यू टुडे दैट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की सो एंड सो पोजीशन, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड लॉज इन इंडिया क्या है, ये टॉपिक प्रिपेयर करके आओ। तो वैसे टॉपिक्स क्लास कंटेंट से, क्लास कंटेक्ट से निकलते हैं जो आप अपनी इंडेक्स में यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ कि यार इंडेक्स को अपडेट कैसे करते रहना है। इसके बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स या जीके में, कि वो एक स्टैटिक एरिया है, एक कॉन्टेम्प्रेरी एरिया है। इसके लिए आप स्कूल की अपनी कॉपी को याद करिए कि आप किस तरीके से कॉपी में पार्टीशन करते थे, फोल्ड करके एक ट्राइंगल बना के उसमें लिखते थे सेकेंड टर्म। वैसे ही आपकी करंट अफेयर्स की कॉपी में आखिरी के जो लास्ट के 50, 60, 100 पन्ने हैं, जो भी आपको लगता है उसको फोल्ड करके आप लिख दीजिए स्टैटिक जीके। उसके बाद आपको स्टैटिक जीके में क्या कवर करना चाहिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो भी हैं इंडिया के पोस्ट महात्मा गांधी 1915 के पश्चात भारत देश में जो भी आज़ादी के आंदोलन हुए हैं, क्लैट कंसोर्शियम उनको इंपॉर्टेंस देगा। और थोड़ा सा हम रिवाइंड में चले जाएं तो मैं बोलता हूं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से लेके तुम बेसिकली 1945 तक की हिस्ट्री पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें अलग अलग एपिसोड्स हैं। साइमन गोबैक, साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट है, देन माउंटबैटन प्लान है, then this there are a lot of commissions have come, a lot of viceroys and their policies we study, role of Indian National Congress we study, partition of Bengal we study, Surat split we study, Lucknow session we study, separate electorates demand we study, Mahatma Gandhi versus B.R. Ambedkar we study. So 1885 till 1945 is modern history of India, and that will become one topic, so you will write it down like this. Economic policies of British India is another topic. British wars in India is a third topic. So you will prepare static वाली चीजें अलग, and they are continuous process. Even if you're not studying current affairs, but you will be studying some episode, some event of static. NCERT textbooks can be a good source. इकोनॉमी में बेसिक्स है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, जीएनपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, आरबीआई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, ये सब चीजें आपको न्यूज़पेपर में दिख रही हैं पर आपको लग रहा है स्टैटिक है। आपने इंडेक्स में लिखना स्टार्ट कर दिया है और उसको आप कवर करते जाएंगे। फिर पास्ट मिशंस हैं स्पेस के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछेगा, वोयाजर, पायनियर, इनके बारे में पूछेगा ही पूछेगा। सैल्यूट 7 दे विल अपीयर इन योर क्लैट पेपर, एलेट पेपर, तो उनको एक साथ अपन ने कर लिया। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया जापान, इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए, इंडिया रशिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ब्राज़ील, इंडिया यूके, इंडिया यूएई, इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया वियतनाम, इंडिया फिलीपींस, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया ताइवान, all these, India Afghanistan for that matter, India Maldives for that matter, India Sri Lanka for that matter, all these bilateral associations are there in news in different months. Each country is a part of some group which behaves very differently with India. So you need to do that thing as well in your 100 pages portion of your current affairs copy. At the end, basics of geography, fastest flowing river, largest river of so and so state, so and so continent, so and so country, smallest river, most widespread species of tree, and so on and so forth, can be done from this particular thing. So static को अलग करना है, इसको करते जाना है। कॉन्टेम्प्ररी में आपको 4 चीज़ें, जब भी आप कोई नोट्स बनाओ, कोई बहुत बड़ा पैसेज है तो आप उसके में 4 चीज़ें लिखने की कोशिश करो। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। व्हाट, व्हेन, कब, कहाँ, कब हुआ, क्या हुआ,
कहाँ हुआ, किसने किया, what, when, where, who, 4 Ws. You go through past year papers of ALET and CLAT, you will find that most of the questions are around for these 4 Ws. You don't have to write the context of the news. For example, India maternal mortality rate गिरा रहा है और इंडियन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देश के लिए बहुत अच्छी है, कम होना चाहिए, और भारत की सरकार अपने पॉलिसी डिसीजन से एमएमआर को कम कर रही है। तो इसमें हमें नोट क्या करना है, कुछ भी नहीं। इसमें हमें नोट करना है एमएमआर होता क्या है, हमें नोट करना है इंडिया की एमएमआर में क्या पोजीशनिंग है, इंडिया में एमएमआर का कितना परसेंटेज है। ये 3 फैक्ट लिख के आगे बढ़ गए, क्योंकि इसमें सिर्फ व्हाट वाली इंफॉर्मेशन थी, व्हेन वेयर हु वाली इंफॉर्मेशन नहीं थी, राइट। किसी टॉपिक में व्हाट, व्हेन, वेयर, हु सारी तरह की चीजें हैं तो एक ब्रॉडर टॉपिक हो जाता है। हो सकता है कि इसमें आपको डीप डाइव करना पड़ सके, लेकिन ये दोनों तरीकों के जीके को नोट्स में अप्रोच करने के तरीके अलग होंगे। इसको हम डेली करेंगे, आराम आराम से करेंगे, एक दिन में पूरी हिस्ट्री नहीं करेंगे। 30 दिन लेंगे, हिस्ट्री का नोट कंप्लीट करेंगे, फिर 30 दिन लेंगे, फिर इकोनॉमी करेंगे, फिर 30 दिन लेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर 30 दिन लेंगे, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे। तो ये तो चलते ही रहता है, राइट। ये वाला जो पार्ट है, इसमें आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, पूरा आर्टिकल समझेंगे, और उसके बाद इसमें ये 4 W ढूंढ के लिख देंगे। अब ये कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताऊंगा आगे। तो कैसे नोट्स बनाने चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला होता है कि आपको एटलीस्ट किसी भी टॉपिक को एक बार नहीं 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी में आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट परसेंटेजेस, बट मैंने बहुत पहले एक अनुज खारे करके किताब थी, और उनकी किताब थी, और उसमें मतलब सेल्फ हेल्प बुक थी। एक नेशनल साइबर ओलंपियाड में जब आपकी सिटी रैंक 1 आती थी उस टाइम पे, तो आपको किताबें दी जाती थी, नॉवल दी जाती थी, तो सेल्फ हेल्प बुक थी। तो उसमें एक बात लिखी हुई थी, परसेंटेज एग्जैक्टली याद नहीं, पर उसमें ये लिखा हुआ था कि जो आप वट एवर यू रीड यू टेंड टू रिमेंबर ओनली 8 to 10% of it. What you read and what you write, you remember 15% of it. What you read, what you write, and what you listen, you remember 20% of it. What you read, what you write, what you listen, and what you see, you remember almost 25% of it. That, having said that, if you have read 100 topics today, it is very likely to happen that the next day you will forget 75 of the topics. But then the road becomes easier if we have made certain basic 4W wale notes of these 75 80 topics whatever are there, and apparently you can revise them in just 2 or 3 days, and you can be an expert of GK, particularly in those topics or in those areas as well. And this is how we will try to make notes. So remember, you need to give first 2 readings of that particular article. पहले पढ़िए, सेकेंड रीडिंग में पढ़ने के बाद खुद को समझाइए, और थर्ड रीडिंग में इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करके उसको लिखिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई एक पेज पे नोट खत्म होने चाहिए। 1 पेजर नोट्स खत्म मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 पेजर नोट्स में जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, तो मैंने यूएन क्लोज को लैंडस्केप करके सामने लिख दिया। अब मैं यूएन क्लोज के बारे में बेसिक बातें लिखूंगा। पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा, दूसरा मैं इसका ईयर लिख दूंगा 1981, फिर इसका मैं एनफोर्समेंट ईयर लिख दूंगा 1996, फिर मैं लिख दूंगा वाटर्स 5 जोन्स, वाटर के अंदर 5 जोन्स हैं, उन 5 जोन को मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैंने जोन के नाम लिखे, 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 और मैंने उनके फंक्शंस बता दिए। तो ये मेरा ये पार्ट खत्म हो गया, जो टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंटरनेशनल वाटर, इनलैंड वाटर्स, 5 जोन हो गए। फिर इसके बाद मैंने इंडिया पे लिख दिया कि इंडिया ने कार्लसबर्ग रिज पे क्या करा है, इंडिया ने कार्लसबर्ग रिज पे एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करा है। अब इसी टॉपिक से निकल के आया एक अलग सा टॉपिक समुद्रयान, तो मैंने स्टार बना के यहाँ पे लिख दिया समुद्रयान, और समुद्रयान जाके अपने इंडेक्स में छाप दिया, क्योंकि समुद्रयान एक टॉपिक हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके जो भी पूरा मुद्दा है वो एक पन्ने में आ जाना चाहिए। अगर वो एक पन्ने से ज्यादा ले रहा है तो आप समझिएगा बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें लिख रहे होगे। क्लैट में कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस अगर जीके में आते हैं तो वो मेमोरी से नहीं सॉल्व होते हैं, वो पैसेज के इंटरप्रिटेशन से सॉल्व होते हैं। और इंटरप्रिटेशन जीके सेक्शन में सिर्फ पैसेज का नहीं होता है, इंटरप्रिटेशन जनरली होता है, आपको एक आइडिया होना चाहिए
जैसे आज अमेरिका जाके पब्लिक फोरम्स में ये कह नहीं सकता कि वो चाइना उसका दुश्मन है, बट हरकतें तो अमेरिका की चाइना के अगेंस्ट ऐसी ही हैं। तो ये इन्फ्रेंशियल और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो आपको करनी पड़ती है, वो आपको करते करते समझ में आती है चीज़ें, राइट। और ये जो इन्फ्रेंशियल और डिडक्टिव रीजनिंग है ये सब हमें पैसेज से मिल जाएगा, लेकिन हम जब नोट्स बनाने जाएंगे तो हम ये सब चीज़ें नोट्स में नहीं लिखेंगे, हम फैक्ट्स लिखेंगे ताकि हमारे नोट्स वन पेजर बने और हम उनको ईजिली रिवाइज कर पाएं। हैविंग सेड दैट, आगे हम अगर इसको बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे ये एक चीज़ पाएंगे कि ये जो आर्टिकल हमारे सामने आया है गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम के ऊपर, अब ये आर्टिकल बच्चे जब देखते हैं तो उनको लगता है सर इतना बड़ा आर्टिकल है, आप तो एक आर्टिकल लेके दिखा रहे हो, हमें तो ऐसे 15-20 आर्टिकल पर डे पढ़ने पड़ते हैं और अब इसके नोट्स भी बनाने हैं क्या? यस, नोट्स बिल्कुल बनाने हैं, लेकिन क्या करना है आपको, वही प्रोसेस हमारा फिक्स है। पहली बार में हम क्रू एस्केप सिस्टम के पूरे आर्टिकल को पढ़ के थोड़ा टाइम लगा के खुद को समझाएंगे कि अच्छा क्रू एस्केप सिस्टम है क्या, ये गगनयान का पार्ट है। एस्ट्रोनॉट्स को फायर वायर लग जाए इस स्थिति में एस्ट्रोनॉट्स को सेफली हमें उस मॉड्यूल से अलग करना है ताकि वो पैराशूट के थ्रू लैंड कर सकें, यानी क्रू जो है जल के मर ना जाए इन केस ऑफ इंजन फेल्योर, इसके लिए एक एस्केप सिस्टम बनाना है। अब जेट्स में एस्केप सिस्टम बड़ा सिंपल होता है कि वो एक हैंडल खींचते हैं और वो सीट जो है वो पूरी प्रोजेक्टाइल की तरह निकल जाती है जेट से और जेट क्रैश कर जाता है और आदमी पैराशूट से नीचे आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड रहने वाली है डिसेंट के टाइम पे या असेंट के टाइम पे वो सुपरसोनिक लेवल पे रहने वाली है, मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, एंड द डायरेक्शन वुड बी परपेंडिकुलर। तो क्रू सिस्टम्स को अगर अपन झटके से बाहर निकालेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें सर जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे समझाई हुई है, हमने पूरा पढ़ा, हमने समझा। अब जब हम नोट्स बनाने जाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या कवर होना चाहिए, सबसे पहले तो क्रू एस्केप सिस्टम के बारे में बेसिक बातें होनी चाहिए। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स, क्योंकि यूरी गागरिन का भी नाम है, सोवियत यूनियन के पहली स्पेस फ्लाइट यूरी गागरिन ने करी। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स कितनी हुई हैं, सबसे पहला फर्स्ट वुमेन ऑन स्पेस, फर्स्ट मैन ऑन स्पेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। This particular thing will go on in your index as a separate topic because it is coming out from this theme. Then Human Launch Vehicle Module 3 HLMV3 that is being used for Gaganyaan. So all the launch vehicles PSLV, GSLV and this SSLV and this LVM3, all these four launch vehicles of India are important. GSLV is called as the naughty boy of ISRO and PSLV is called as the workhorse of ISRO. Along with that, recent missions of PSLV, recent missions of GSLV will appear as an important theme, and your notes should have information about these three. But this article is not giving us information about human space flights. This article is not giving us information about launch vehicles. These are sub themes which are coming out from that. Along with that, there is a slight mention of Vikas engine as well as types of crew escape systems. All of these things will go down in your notes, and entire context part we have just understood by our own self by giving first reading and in second reading highlighting important areas, in third reading writing only the important facts. थोड़ी बहुत extra research करनी पड़े तो it is always a plus sign. So how I would have created the notes based on the article that I have read. Based on the article that I have read, I can only figure out that crew escape system is a part of Gaganyaan mission. The launch vehicle is LVM-3. There are two types of crew escape system, push and pull. The push one is there in SpaceX Falcon 9 and pull system is there in Gaganyaan. Okay, crew escape system is very critical as rocket systems are less reliable. You cannot control a rocket once it is already on flight. Also because it uses solid fuel S-200 rockets, this indicates that इंजन एक बार ऑन हुआ तो वो फिर बंद नहीं हो सकता जब तक तेल पूरा उसका खत्म ना हो जाए, and that can become a dangerous situation for astronauts on space because in upper layer of atmosphere the temperature rises to a very deep extent. Okay, temperature falls to a very deep extent and then suddenly continues to rise, and nobody understands the reason for this temperature anomaly. However, we cannot say that we will not turn off the engine, but Vikas engine is being used in test flights, in training and all. So I'll try to tell you कि भाई इसमें इतने ही नोट्स आपको बना के ख़त्म कर देना है.
इससे ज़्यादा डीप में डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक दूसरा आर्टिकल आया ऐसे इस तरीके का कि हाउ इनोवेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब पूरा आर्टिकल अपना किसके ऊपर है, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज के ऊपर है। ये 3 महारथी बैठे हैं जिनको ये नोबेल प्राइज 2025 का दिया गया। हमने वही काम किया, हमने 2 आर्टिकल्स 2 बार एटलीस्ट पढ़ा, एक बार खुद को समझाया, दूसरी बार चीज़ों को हाईलाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। तो अब जब नोट्स बनाएंगे इसके, तो इस नोट्स में क्या क्या होगा, तो आपकी इंडेक्स में एक अलग टॉपिक चला जाएगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज। जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं उनकी हिस्ट्री अपन को पढ़नी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है रिक्स बैंक नॉवरेजेस बैंक देती है, ये बैंक क्यों देती है ये हमें पढ़ना है, राइट। ये नोबेल प्राइज क्यों देती है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2025 और 24 में किन किन को मिला है। तो 25 में जोएल मॉकर को, पीटर हॉविट को और फिलिप अगियन को मिला है। अब बिकॉज मेरे प्रोनाउंसिएशन बेकार है, मुझे इनकी कंट्री नहीं याद होगी, तो मैंने कंट्रीज भी लिख दी हैं नीचे के भाई, नीदरलैंड, फ्रांस और यूएस, 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। आज मैंने नोबेल पीस प्राइज कर लिया, कल मैंने इकोनॉमिक्स कर लिया, परसों मैंने मेडिसिन कर लिया, उसके बाद केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, तो हो गया ना 6-7 दिन के अंदर अंदर 6 नोबेल प्राइज 6 दिन के अंदर कंप्लीट। दोबारा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ नोट मेकिंग। अब इनको किस चीज़ के लिए दिया गया नोबेल प्राइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बोला कि सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू डिस्ट्रप्शन है। पिछले 1000 सालों से पूरी दुनिया की जीडीपी नहीं बढ़ रही थी, लेकिन गत पिछले 2 सालों से दुनिया की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, फिर ग्लोबलाइजेशन आया और अब डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये इन लोगों ने बोला, उनके भी उन 1000 साल का जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था और 200 साल का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस था, उसके बीच में इन लोगों ने लिंकेजेस बनाने की कोशिश करी है, राइट। उन्होंने ये भी बताया कि पुराने टाइम पे जो नॉलेज होती थी, जो ज्ञान होता था, वो प्रपोजिशनल नॉलेज होता था, इसीलिए थियरीज वर वेरी गुड एंड दैट इज वाई लियोनार्डो डा विंची क्रिएटेड the design of a helicopter way back in 16th century. However, there was no advancements in technology. There were know-hows of how to extract metal, no idea about metallurgy, no idea about skill development. So the ideas only remained on paper. They were never implemented or executed for that matter. And that is why that area was an era of propositional knowledge. राइट नाउ वी चेज प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज बिकॉज ज्ञान होने से काफ़ी नहीं होता, आपको ज्ञान को पुट टू प्रैक्टिस करने भी आना चाहिए। इसके लिए प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। समाज को पहले तो ये मानना पड़ेगा, द सोसाइटी नीड्स टू बिलीव दैट चेंज इज द ओनली परमानेंस, दैट दे नीड टू चेंज, दे नीड टू गेट आउट ऑफ दिस ओल्ड गुरुकुल गुरु शिष्य वाली परंपराएं, एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। Secondly, the policy executions and the policy decisions that parliament or the government is taking can only play an important role. They cannot change the mindset of the particular parent or the guardian or the child, but they can definitely give a credible opportunity to understand this, right? So policy makers can get this opportunity to understand this and they can create laws around it. So these are the things that are there in the content part of it, but you will find that I haven't written that down. Okay, I haven't written that down. I have simply written basic information about the entire article. तो इतना बड़ा आर्टिकल है यार टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का, और उसका नोट कितना निकल के आया है, सिर्फ 1 पन्ने का नोट निकल के आ गया है। उसमें भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये फिगर आउट नहीं होता ना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, व्हाट व्हेन वेयर हु बता दिया आपको, यही 4 चीज़ें लिखनी है। इसके बाद अब बेसिक बातें कर लेते हैं कुछ नोट मेकिंग के ऊपर कि भाई देखो, कंसिस्टेंसी सब कुछ है। मतलब आज आपने 3 दिन 4 दिन नोट्स बनाए और फिर 5-6 दिन नोट्स नहीं बनाए तो मोटिवेशन ही नहीं आएगा, जो बनाए हुए नोट्स हैं उनको रिवाइज करने का मन नहीं करेगा। अगर आपने किसी चीज़ पे जान डाल के नोट्स बनाए हैं, ढंग से पढ़ा है फिर नोट्स बनाए हैं, तो ट्रस्ट में आपको पता है कि आपने नोट्स बना लिए, मतलब आपको याद है, तो आपको रिवीजन का टाइम बचेगा, आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली करना है। आप ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में 10 टॉपिक करो और फिर 10 दिन कुछ मत करो। आप एक दिन में एक ही टॉपिक करो, पर डेली करो और एक फिक्स टाइम पे करो। दूसरा, नोट्स आर नॉट टू मेक परफेक्टली इन वन गो, मतलब नोट्स आर नॉट टू बी मेड परफेक्टली। कहने का मतलब यह है कि आपके नोट्स सिर्फ आपके हैं, सिर्फ आपको समझेंगे, गंदी हैंड राइटिंग में होंगे, रंगीन नहीं होंगे, ब्लैक एंड वाइट होंगे या ब्लैक एंड ब्लू होंगे, और आप उस नोट को बेच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो नोट सिर्फ आपको समझता है।
तो नोट्स वही अच्छे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हों और जो परफेक्ट ना हो। कंसिस्टेंटली आप रिवीजन करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे तो वो नोट मेकिंग की जो स्किल सेट है वो रिफाइन होती रहेगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द पर्पस फॉर नोट मेकिंग दैट आई हैड स्टार्टेड दिस। द पर्पस ऑफ नोट मेकिंग, basic question is, when do we have to make notes? We have to make notes when we have heard about the topic but we are not able to recall which option is correct. This is a great sign that you need to go back to your notes and refer them. Second is, which type of candidate needs notes? Because somebody who cannot open the book and go through it again and again, somebody who is not that smart but is very hard working. You give him 40 pages, you give him 2 topics, he will spend 2 hours to cover those 40 pages. So person जिसको याद नहीं हो रहा है, चीजें समझता नहीं है, तो वो लिखेगा, राइट? और नोट मेकिंग सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ऑल्सो ये भी याद रखिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ नोट में नहीं जाएगा। हम लोग नोट में एंग्जाइटी के मारे, फियर ऑफ मिसिंग आउट के मारे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि यार अगर ये नहीं लिखा मैंने तो मेरे को भूल जाएगा बाद में। नहीं भूलता है दोस्त, नहीं भूलता है, याद रहता है, राइट? तो आपने जो भी पढ़ा है, अगर आपने उसको समझा है तो आपको उसको नोट में लिखने का जरूरत नहीं है। इन सभी पॉइंट्स को यूज करना चाहिए आपको गैप फिलर्स की तरह। आप ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हमें जीके को टेकअप करना है। उसके बाद लास्ट टिप यही है कि भाई देखो, नोट्स के नोट्स मत बनाओ। अगर कोई टीचर हैंड रिटन कंटेंट दे रहा है, कोई टीचर के नोट समझ में आ रहे हैं, कोई टीचर का पीडीएफ समझ में आ रहा है, कोई टीचर की वीकली शीट समझ में आ रही है, तो उनके अतिरिक्त नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी शीट को, उसी टॉपिक को हाईलाइट करके, ये करके बार बार गो थ्रू कर सकते हैं, एटलीस्ट टिल योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज रिमेंबर, नोट्स के नोट्स नहीं बनाने हैं। कोई हमारा काम अगर आसान करके दे रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे उस चीज का, बिल्कुल फायदा उठाएंगे उस चीज का, राइट? तो ये सारी बातें मुझे आपसे करनी थी नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई नो अगर हम नोट बनाने पे आए तो ये आपको एक्चुअली में बना के दिखाना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि कैसी चीजें करनी चाहिए, कैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक जो फियर फैक्टर होता है कि मैं परफेक्ट नोट्स नहीं बनाता, मैं रिपीटिशन देता हूँ इन्फॉर्मेशन में, तो एक दो बार अगर आप इंदौर सेंटर में होते तो मैं एक दो बार आपको देख लेता, आपकी कॉपी देख लेता, उसमें अपना एक दो पेज में अपना नोट बना के आपको दे देता और आपको समझ में आ जाता। ये काम मैंने भोपाल में किया है, ये काम मैंने जोधपुर में किया, मतलब भोपाल के स्टूडेंट्स के साथ किया है, मैंने जोधपुर के स्टूडेंट्स के साथ किया है, मैंने इंदौर के स्टूडेंट्स के साथ किया है। सो ऑल ऑफ थिंग्स आर लाइक दैट हियर, ओके? तो आप अपने नोट्स बना के रेफर करा लेना एक बार। अगर आपको क्लैट अगले साल देना है तो आई लुक इन टू दैट। टेलीग्राम आईडी एंड एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो। और अगर आपका कोई ओपिनियन है करंट अफेयर्स को लेके, नोट्स को लेके, या आपको ये चाहिए कि हमें लाइव सेशन पे बताओ जीके के नोट्स कैसे बनाने हैं, या जीके से रिलेटेड जनरली कोई प्रॉब्लम है, या न्यूज़पेपर से नोट्स किस एक्सटेंट तक बनाने हैं, या लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल को कैसे कवर करना है, या एडिटोरियल में लॉजिकल लीगल जीके सब है तो क्या लिखें क्या ना लिखें, कैसे फिगर आउट करना है। अगर इस तरह की कुछ दिक्कतें आपको फेस हो रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने प्रॉब्लम ज़रूर लिखेगा। जैसा कि आपको पता है, किसी बच्चे ने किसी ज़माने में मेरे वीडियो के कमेंट में ये लिखा हुआ था कि जीके के नोट्स कैसे बनाने हैं। तो क्या होता है, कभी कभी मैं सेशन लेने जा रहा होता हूँ, उसके पहले ही कोई टीचर उस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता है, तो वी डोंट रिपीट थिंग्स। तो लास्ट ईयर नहीं आ पाया था, इस साल मुझे ये मौका मिला है आपसे एसोसिएट करके आपको समझाने का। अब अगर आप अभी क्लैट देने वाले हो और आपने नोट्स नहीं बनाए और एग्जाम को बचा ही है 1-1.5 महीना, तो अब तो टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। दिस इज नॉट द टाइम टू मेक नोट्स। ऑल दैट यू कैन डू इज गो थ्रू ऑल दोज टॉपिक्स एट लीस्ट वंस, दैट्स इट, साल भर में जो भी आपने पढ़ा है। तो हैविंग सेड दैट, ये सारी चीज़ें आप करेंगे और आपकी जो डाउट्स एंड क्वेरीज है आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। याद रखिएगा, ये इससे फर्क नहीं पड़ता था अभी तक कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे, अगले 40 दिन में तुम झंडे गाड़ रहे हो कि नहीं गाड़ रहे हो, ये इससे सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आप दिखने लगते हो। एग्जाम के 1 महीने पहले आपकी परफॉर्मेंस का आकलन लोग करने लगते हैं, ठीक है? ये चीज़ें याद रखनी है। वो लाइन है, ए भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, ए भारत के राम जगो
मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसमें एक पॉइंट उन्होंने ये कहा था, उस गीत में, उस पोयम में ये कहा है कि देख हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आप बता दे है कितना पानी भारत के वीरों में। समझ गए? तो देख हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आपसे ये कहना चाहते हैं, कवि का आशय ये है कि इम्पॉसिबल है, राइट? हिमालय को दुश्मन ने कैद कर लिया तो सोचो दुश्मन कितना बड़ा होगा। देख हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दे है कितना पानी भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, जागो वीर पुत्र भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। ऐसा पोयम में लिखा था। तो क्लैट का एग्जाम, जीके के नोट्स, डेली मॉक देना, डेली एनालाइज करना, ये सब इसी तरीके से है। तो मैं भी आपको थोड़ा आपके नयन चक्षु खोलने आया था, आपको समझाने आया था कि जीके के नोट्स कैसे बनाने चाहिए। कुछ ऐसे बनाने चाहिए। और अगर कोई टीचर आपका काम आसान करके दे रहा है तो उस टीचर को पकड़ लो भाई, उसको बोलो कि हमें नोट्स बना बना के दे दो, और ताकि हम उसको प्रिंट करा के अपने पास रख लें। मुझे बस इतना ही कहना था आपसे। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो आपने एंड तक देखा है, क्योंकि ये वीडियो में कुछ बातें ऐसी थी जिससे आप रिलेट कर पा रहे थे, कुछ बातें ऐसी थी जिनका, जो आपके मन में तो सवाल के रूप में थी पर इनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, आज मिल गया होगा। तो ऐसी भी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में याद रखा करिए, आप लिख के चले जाते हैं पर मैं आपके कमेंट से बात कर रहा होता हूँ, मुझे आप समझ में आते हो आपके कमेंट से ही कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। Having said that, I think this session is done now. More topics can be taken from the comment section. All the very best. Keep hustling hard and see you guys in National Universities. Students, those who are in foundation batch, please take motivation from this thing कि आपके जो सीनियर्स हैं ना, वो इस समय परेशान सिर्फ एक ही सेक्शन की वजह से हैं। ना लीगल परेशान कर रहा है, ना लॉजिकल कर रहा है, ना इंग्लिश कर रहा है, ना मैथ्स कर रहा है। सिर्फ एक ही सेक्शन इस समय हमको परेशान कर रहा है, एग्ज़ाम के 45 दिन, दैट्स जीके। आपको ना करे एग्ज़ाम के 45 दिन पहले जीके, इसलिए आज से नोट मेकिंग स्टार्ट कर दीजिए। दैट्स ऑल, दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।